Hello, my dear children. So today I am here with you all to discuss the mind map for class 12. I got the comments from some students regarding that. Sir, can you help us to do the mind map for class 12 also? So yes, we can. The mind map can be done for any class, any chapter, any subject, right? It depends upon you that how you have learned this chapter. So आप सबके लिए now I am starting for class 12 the mind map. So one day for class 12, one day for class 11. Slowly within a month I will cover all the mind maps of class 11 and 12 physics. And as you all know that this will help you out to revise the chapter in short time, right? And you can just learn the formulas with the help of this. You can just make a small chart and you can fix it on the wall so that you can revise it easily, right? Okay, so let's start. We are starting with the first chapter, that is electrostatic. तो electrostatic के अंदर हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक मैंने कंसीडर किया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि इन 1985 में right 1985 Charles Austin the Coulomb, the name of the scientist, Austin the Coulomb, right? From we know that scientists जो होते हैं वो अपने नाम से लॉ को डिस्क्राइब करते हैं. तो he gave us the Coulomb law, gave Coulomb's law, which is very important, very famous in electrostatic, right? So what he said in his Coulomb's law, let's see what he said in his Coulomb's law. Here we can see that is Coulomb's law, right? So Coulomb's law के अंदर इसने सबसे पहले क्या बताया था? तो उससे भी पहले हम दो चीजों को डिस्क्राइब करेंगे. कूलम्ब्स लॉ पे जाने से पहले हमें चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर चार्जेस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर दिस दैट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस. सो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? हमें पता है टू काइंड ऑफ चार्जेस आर देयर, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, right? So I can mention here in a box. First is positive and negative. There are two kind of charges. One is positive, one is negative. And the unit of charge is coulomb. As a unit is coulomb, and that can be denoted by C, capital C, right? And also, what is this? A wire in 1 second if current is in 1 ampere. A wire in 1 second if current in it is 1 ampere. That is the charge of electron, that is fixed 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So ये तीन चीजें आपको चार्जेस के बारे में याद रखनी, right? Okay. Now very important two properties of charges. One is the quantization of charge. Very important. What is the meaning of quantization? I will explain. Quantization of charge. Quantization of charge का मतलब क्या है कि चार्ज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है that can be written as Ne, means charge on a body is always the integral multiple of charge on an electron, right? तो n क्या है? n can be any number, 1 2 3 4 5 6 any number. तो ये हमारे पास q is equal to n क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया यहाँ पे. Then we have another one, that is conservation of charge. This is also very important and we all know that conservation of charge.
Conservation of charge means charge can neither be created nor be destroyed. It can be transformed from one form to another. So we can mention it is not possible to destroy or produce charge, right? It can be transformed from one form to another. This is the meaning of the conservation of charge, and this is the meaning of the quantization of charge, right? तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होगी। चलिए अब हम चलते हैं कूलम्स लॉ की तरफ। तो कूलम्स लॉ हमें क्या कहता था? कहता है इसने हमें बताया था कि फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। He said force between two charge particles। अगर आप दो चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हो तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। तो वो हमारे पास क्या बनती थी? वो इक्वेशन थी हमारे पास इस तरीके से, F कैन बी गिवन एज K Q1 Q2 by RCO। This is the magnitude I am writing about the attractive nature, right? This is the magnitude of the force. I am not considering here any vector quantities. Where K can be written as 1/4 pi epsilon naught, and its value is 9 into 10 raised to power 9, right? Newton meter square per coulomb square. Unit is very important. Newton meter square per coulomb square. This is the unit of K, right? अब इसके बाद अगर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस आ रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द टू चार्जेस, इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस, तो वो मल्टीपल चार्जेस क्या होंगे? अगर मैं एक चार्ज को फिक्स करूं तो वो क्या फोर्स बनेगी उसके ऊपर? तो सपोज कीजिए कि एक मैंने चार्ज लिया कोई भी F, इस तरीके से F1, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ F1i प्लस बहुत सारे चार्जेस हैं, एक चार्ज मैंने जर्नल मान लिया, राइट? तो इसके ऊपर मैं फाइंड आउट करता हूँ F12 F13 प्लस F14, सो मेनी, राइट? तो इसको मैं जर्नल कैसे लिख सकता हूँ? जर्नली अगर मैं लिखना चाहूँ तो जर्नल फॉर्मूला मेरे पास बनेगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन। अब मैंने क्या किया? जर्नल एक I वैल्यू ले ली जिसकी I की वैल्यू है 2 से लेके n तक, I is equal to 2 to n। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? Q1 है तो दूसरा क्या बनेगा हमारे पास? Q I, कि I की वैल्यू जो है वो वेरी करती है। उसी तरीके से नीचे मेरे पास क्या होगा? 1i, क्योंकि मैं 1 और I मेरे पास वेरी कर रहा है तो 1i का स्क्वायर इंटू 1 कैप। This is the unit vector we can mention, right? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये फोर्स है, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। इसके अलावा अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है तो उसकी फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, राइट। देन वी हैव अनदर फिजिकल क्वांटिटी, that is electric field. If we talk about electric field, let's go for electric field. इस चैप्टर में हमने इन चीजों को डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पता है कि जो चार्जेस हैं तो उसके अराउंड एक फोर्स होगी, एक एरिया होगा जहां पे उसका इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। So that is the meaning of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम आगे दो तरीके से डिस्कस करते हैं। तो एक है हमारे पास, इसको थोड़ा से लिखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग सबको क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास इसमें से दो चीजें आती हैं, एक आती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट?
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं. तो इनकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज करी थी. प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? दे आर ऑलवेज नॉर्मल. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं वन बाय वन. ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. हमेशा वो जो भी सरफेस होगा उसके क्या देंगी? नॉर्मल, राइट. कंडक्टिंग सरफेस होगा. और ये हमारी क्या होगी? लाइन जो होती है हमेशा ओरिजिनेट होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. यस, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से. उसके अलावा जब ओरिजिनेट होती है तो ये टर्मिनेट कहाँ होंगी? नेगेटिव पे. दे विल बी टर्मिनेटिंग at negative charge. Terminating at negative charge. Very easy, right? Very important. इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है. They never intersect each other. They never intersect each other, right? Apart from this, they are imaginary lines. I am writing with a different one. Imaginary. Right, this is the properties of electric field lines और electric lines of force. अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इस तरफ आ जाते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हमने क्या किया था? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज. That is electric field can be written as F over Q. फोर्स जो होती है मेरी न्यूटन में होती है और जो चार्ज है वो कूलम में है. अगर मैं इस F की जगह न्यूटन फॉर्मूला लगाऊं तो K क्या बनेगा? ये Q by R स्क्वायर. ध्यान से देखिए कि F की जगह हमने न्यूटन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो इसका जो यूनिट है वो क्या बनता है? यूनिट न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम. ओके. अगर यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके अंदर, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, राइट. तब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बन के आती है समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, राइट. तो मेरे पास क्या बन जाएगी? EI. इसका पूरा समेशन हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा. अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंट रहेगा. अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा हमारे पास E इज इक्वल टू K dQ ओवर RQ इंटू R, राइट. तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. ओके. So I hope this is clear to all. Now we are going to the another quantity, that is electric dipole. Electric dipole क्या होता था? जब हम दो चार्जेस को पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट करते थे तो वो एक डाइपोल जनरेट करते हैं, राइट. तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल. यहां है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हमने क्या था? E इज इक्वल टू क्यू डी या क्यू आर. डी इज इक्वल टू 2a या कोई भी डिस्टेंस हो सकता है इसके अंदर, राइट. अब इसके अंदर हमने दो चीजें की थी, एक किया था एक्सियल और एक किया था इक्वेटोरियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल, यहां
बाकी मेंशन कर देता हूं मैं, ड्यू टू एक्सिल, राइट। और एक होगा हमारा इक्वेटोरियल, एक्सिल एंड इक्वेटोरियल, राइट। तो एक्सिल के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था 1/4πε0 राइट, Q अपॉन 2P अपॉन राइट vector form, right, this is a unit vector. Same way if I talk about the equatorial position, तो equatorial position के लिए हमारे पास क्या था, E is equal to 1/4πε0 P over R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो हमने दोनों के बीच में रिलेशन भी बनाया था कि किस तरीके से है, ओके। इसके अलावा हमारे पास है इस इलेक्ट्रिक हमारा जो डाइपोल है इसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क, राइट। तो टॉर्क के लिए हमने किया था P क्रॉस E, और हम कह सकते थे PE साइन थीटा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट, ओके। देन वन मोर फिजिकल क्वांटिटी दैट वी कॉल फ्लक्स। फ्लक्स का मीनिंग होता है बेटा फ्लो, मीनिंग ऑफ फ्लक्स इज फ्लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का मीनिंग है फ्लो। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया तो मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है एक्चुअली कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक पर्टिकुलर एरिया कंसीडर करते हैं तो उसमें से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्रॉस कर रही हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम स्मॉल एरिया में कंसीडर करें तो स्मॉल एरिया के लिए हम कैसे लिखते हैं, लेट्स सी, डेल्टा फाई ई डॉट ds। अब ds यहां पे क्या है मेरा, स्मॉल एरिया, राइट। ds ले सकते हैं, डेल्टा मेंशन कर सकते हैं। तो ये स्मॉल एरिया है जिसमें से क्रॉस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट, E डॉट ds। और अगर मैं टोटल निकालूं, टोटल फाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा ऑब्वियसली, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, राइट। अब इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करके हमारे एक साइंटिस्ट थे, गॉस ने अपना लॉ दिया था। वो लॉ क्या था वो हम डिस्कस करेंगे अब। गॉस थ्योरम के नाम से फेमस है जो। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, दिस इज गॉस थ्योरम, राइट। तो गॉस थ्योरम के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, गॉस थ्योरम बोलते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, टोटल फ्लक्स कोई भी क्लोज एरिया के अंदर, राइट, तो टोटल फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए अभी हमने बनाया था टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन, ये है मेरी टोटल फ्लक्स, राइट। तो ये जो टोटल फ्लक्स है वो कहता है किसके इक्वल होती थी, 1/ε0 टाइम्स the total charge enclosed in the surface, the total charge present in the enclosed surface. So this is the meaning of Gauss theorem, right? तो गॉस ने हमारे पास जब ये थ्योरम दी तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी बनी थी। तो वो एप्लीकेशंस क्या थी हमारे पास, वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, काफी है वो जो आपने डेरिवेशन की होंगी इस चैप्टर के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं अभी वन बाय वन। सबसे पहले हमने इसको यूज करके किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है किसी भी स्फीयर के अंदर, राइट। तो बात करते हैं हम एज तरफ, राइट। तो जब चार्ज हमारे पास होगा यूनिफॉर्म, like electric field due to uniformly charged sphere, electric field due to
यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, राइट। जब चार्ज जो है यूनिफॉर्मली स्फीयर होगा तो उसमें तीन चीजें बनेगी, एक आउटसाइड, एक इंटरनल और एक सरफेस। तो हम तीनों को डिस्कस करते हैं। आउटसाइड, राइट। तो जब आउटसाइड की बात करेंगे, आउटसाइड पे मेरे पास बनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बनी थी आउटसाइड, राइट। दूसरी तरफ अगर इंटरनल पॉइंट पे बात करें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आता था। इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बनती थी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्योंकि ये इंटरनल पॉइंट है। अगर हम ऑन द सरफेस बात करें तो ऑन द सरफेस वो सेम रहती थी आउटसाइड की। ऑन द सरफेस E is equal to Q over 4 pi epsilon naught R square. Let me write again. Q over 4 pi epsilon naught R square. तो ये तीन चीजें गॉस ने एक्सप्लेन करी थी हमारे पास, ऑन द सरफेस एंड outside the surface and inside, right? Apart from this, many other things were also discussed by Gauss. So what are these? These are field due to linear charge distribution. That is field due to linear charge distribution. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बना था इलेक्ट्रिक फील्ड E will be equal to lambda upon 2 pi epsilon naught R, राइट। जहां पे जो लैम्डा थी वो मेरी क्या थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देन प्लेन शीट पे भी हमने किया था फील्ड ऑन अ प्लेन शीट, राइट। तो प्लेन शीट के लिए मेरे पास क्या बना था, E इज इक्वल टू, याद हो आपको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, सिग्मा ओवर 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सिग्मा क्या था यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट एरिया। उसी तरीके से फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, जब मेरे पास जो कंडक्टिंग प्लेट थी वो चार्ज थी, तो चार्ज कंडक्टिंग प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। सिग्मा वही रहेगा हमारे पास, राइट, चार्ज पर यूनिट एरिया। और हमने ये भी बताया था कि जो फील्ड है इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, फील्ड देन आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। One more application which we have discussed about Gauss theorem, with the help of Gauss theorem, that is electric field due to thin spherical shell outside. The thin spherical shell हमने लिया था, उसमें हम तीन तरीके से निकाली थी हम इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड, इनसाइड एंड ऑन द सरफेस। तो आउटसाइड हमारे पास बनी थी डेरिवेशन Q upon 4 pi epsilon naught R square। इनसाइड जो थिन स्फेरिकल शेल थी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आई थी, और जो सरफेस पे है उसकी बनी थी Q upon 4 pi